ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ खड़े कर रहे हैं। जब नॉन पॉलिटिकल रहते हैं तो साथ रहते हैं, जब पॉलिटिक्स में आ जा तो दोनों एक ही इमेज पा जा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक हो जाता है सबका। पॉलिटिकल आदमी की कोई एंट्री नहीं है, बलबीर सिंह राजेवाल की एंट्री कोई भी नहीं रहेगा। अगर पॉलिटिकल हो गया है तो हमें नहीं लगता कि वे फिर मोर्चे में आएंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟ नहीं रहनी। कमेटी अगर बनेगी तो ये लोग कमेटी में नहीं रहेंगे, इतना कंफर्म है। पार्टी बना ली तो उसका नुकसान होगा, मोर्चे ਨੂੰ ਹੋਗਾ, मोर्चे को भी नुकसान होगा। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛੂਗੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? वो चले गए होंगे, उनकी आस्था पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा होगी। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਗਲਤ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? हमारी पार्टी उस पर कोई बात नहीं भाई, हम ना उनको उनके प्रचार में जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ, बैठ जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हमने क्या है कि छुट्टी पर गए 4 महीने, और छुट्टी पर जाकर कौन आदमी क्या कर रहा, छुट्टी पे है 4 महीने की। स्कूलों छुट्टी पे जाने होमवर्क भी दिता जाता था। हाँ नहीं, होमवर्क नहीं दिता, ये होमवर्क ही तो कर रहे। एसकेएम ने होमवर्क नहीं दिता ना, दे रखा है, होमवर्क ही कर रहे, अपना कर रखे। तुसी देता होमवर्क ना, अपने आप ही दे रहे, कर लेंगे। आओगे कोई ना कोई करके, फिर आओगे कोई इंगे जाएंगे, कोई इंगे जाएंगे ना, जनता अपने आप बताओगी कि कहाँ जाना। एसकेएम ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। धन्यवाद। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? और बना लेने तो भाई, पार्टी बनाने का और वोट देने का सबको अधिकार है, कौन किसको रोक सकता है। संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। संयुक्त मोर्चे ने पार्टी नहीं बनाई। तो जेडे किसान कदे उनके लीडर पार्टी बना सकते हैं, वे चले गए हैं, लेकिन जनता की इच्छा नहीं है। फिर मोर्चे का पार्ट रहणगे वो आने वाले दिनों 15 तारीख को मीटिंग, 15 तारीख की मीटिंग है कि उसमें ही 15 तारीख को पता चलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो तो शायद पार्ट ना रहे। जेडे 22 ने, जड़ियां 22 जथेबंदियां ने पंजाब दी, पार्ट नहीं रहणगी। अभी 15 तारीख को देखते हैं वे जाएंगे, क्या रहेगा, आएंगे क्या रहेगा उसमें। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਹੈ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ अकेला नहीं, उसी टाइम पे बातचीत ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ तक गल नहीं हुई 9 ਮੈਂਬਰੀ टीम दी? नहीं, अभी हम मिले नहीं आपस में, और 15 तारीख को मिलेंगे, तो इस पर 15 तारीख में भी इस पर जरूर चर्चा होगी। मोर्चा चल रहा है,
या मोर्चा पोस्टपोन नहीं हो गया नहीं, या मोर्चा खत्म हो गया? मोर्चा तो चला हुआ है, चल रहा मोर्चा है मोर्चा। ना, मोर्चा खत्म होगा, मोर्चा चला हुआ है। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ? नहीं नहीं, मोर्चा खत्म कैसे हो सकता है? मोर्चा है, मोर्चा तो पूरा देश का है ये, और मोर्चा तो चला हुआ है। कोई चीज बन गई वो खत्म थोड़ा होती है ऐसे ही। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं नहीं नहीं, नहीं खत्म हुआ, वो तो उनका व्यक्तिगत वो हो सकता है। एक आदमी कोई भी है वो ना मोर्चा खत्म कर सकता, ना हम चाहें कि हम मोर्चा खत्म कर सकते हैं। मोर्चे से जा सकते हैं बाहर, लेकिन मोर्चे खत्म नहीं होते। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ये ਖੰਡਨ कह रहा ਕਰਦੇ ਹੋ कि- ਉਸ ਬਿਆਨ नहीं नहीं, हम क्यों एसकेएम की कहूगा? हम क्योंकि बलबीर सिंह वो राजेवाल 15 तारीख में हम अपना बताएंगे, क्योंकि 15 तारीख में लोग इकट्ठे होंगे और जो प्रेस के लोग सवाल पूछ जाएंगे उसका जवाब दे देंगे। मीटिंग च पूछोगे ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? पूछे नहीं, हमें जाएंगे? क्या पूछने की जरूरत है किसी से ना। भाई व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है तो उन्होंने दे दिया, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ मोर्चा तो है ना, मोर्चा कहाँ खत्म ਫਿਰ हो ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹੀ वो- ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ। वो चले गए क्यों कह रहे होंगे। ने फिर? नहीं, मैं कह रहा कि चले गए होंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, वो चले गए होंगे, उनकी आस्था पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा होगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ नहीं, ਪਾਰਟ अब ਸੀਗੇ, भाई ਜਿਹੜੇ जो ਲੋਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹੀ ਪੋਲਿਟਿक्स चले गए। जो पॉलिटिकल लोग हो गए तो उनको अब नहीं साझा करने के भी, पॉलिटिकल आदमी की कोई एंट्री नहीं है, बलबीर सिंह राजेवाल की एंट्री होगी? कोई भी नहीं रहेगा। नहीं अगर होगी। पॉलिटिकल हो गया है तो हमें नहीं लगता कि वे फिर मोर्चे में आएंगे। जे मैं पूछा हाँ या ना च? मैं कह रहा जे कि मैं हाँ वहाँ या ना च जवाब पे पूछा। 15 तारीख में सब चीजें तय होंगी। नहीं, एक पासे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि पॉलिटिकल ਲੋਕਾਂ ਦੀ एंट्री नहीं होगी। ਜੇ मैं हाँ या ना पॉलिटिकल आदमी, पूछा टकैत साहब पॉलिटिकल हाँ या आदमी ना? मेन से पॉलिटिकल आदमी वो होता है जब चुनाव लड़कर जीत जाता है। नहीं, पार्टी बनाना एक पहला कदम ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ। पार्टी तो यहाँ पे 6000 पार्टियां रजिस्टर्ड है। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ? उन्होंने इस उस पर कोई सस्पेंड नहीं करा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टी ਜਦੋਂ आ तो के हम ये कह रहे हैं कि पार्टी तो यहाँ पे हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड है देश में। मेनली उसको मानना जाता है जो लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसको पॉलिटिकल वो मानना जाता है। और अभी तो आंदोलन ये खत्म हो गया, आंदोलन एक समाप्त हुआ है। आंदोलन अभी आंदोलन खत्म हो अभी गया? कोई आंदोलन चले भी ना, आंदोलन अभी जो दिल्ली का है वो आंदोलन अभी वहां से समाप्त हुआ है, स्थगित हुआ है आंदोलन। अभी नया कब चलेगा वो आने वाला टाइम बताएगा उसको कब चलेगा। अभी तो चुनाव वाला ये माहौल चल रहा है अभी, तो कुछ लोग इस चुनाव के दहर में जाएंगे, कुछ निकलेंगे, कुछ बचेंगे। क्या रहेगा अभी 4 महीने को ये मान के चल रहे कि 4 महीने सब लोग छुट्टी पर गए और अब अपने घर पर जाकर कौन आदमी क्या कर रहा उसका कोई मतलब मोर्चे का नहीं है। जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी वो 4 महीने के बाद में आएगी। जो लोग चुनाव में जाएंगे उनको मूवमेंट में नहीं आना। अभी ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ नहीं ਆਉਣਗੀਆਂ। मूवमेंट में कहाँ भी आएंगे। मूवमेंट ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ अगर ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ मूवमेंट ਹੈਗੀਆਂ? में ये अभी कोई मूवमेंट चलता है तो अभी तो मूवमेंट में आए नहीं, और अभी इतना जल्दी कोई मूवमेंट चलना भी नहीं है। किसी को व्यक्तिगत अपना मूवमेंट करना है ਪਰ ਜਿਹੜੀ लोकल स्तर पे, एमएसपी ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ एमएसपी ਲਖੀਮपुर खीरी ਦੀ ਗੱਲ पे ਸੀ। एमएसपी पे बातचीत कमेटी की एक बनाने की बात करी, लेकिन अभी कमेटी नहीं बनी। कमेटी अगर बनेगी तो ये लोग कमेटी में नहीं रहेंगे, इतना कन्फर्म है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ नहीं ऑन होएंगे। रिकॉर्ड ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि नहीं नहीं, ਇਹ ਲੋਕ ਪਾर्ट नहीं रहेंगे। देखो ये लोग तो कमेटी में नहीं रहेंगे, जो पॉलिटिकल उसमें चलेंगे वो कमेटी में नहीं रहेंगे, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। जो एमएसपी की कमेटी बनेगी उसमें तो नहीं रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे च रहणगे लोग? अभी संयुक्त किसान मोर्चे में रहेंगे नहीं रहेंगे, इनका क्या अस्तित्व रहेगा वो आने वाला टाइम बताएगा। ਜੇ ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਪੂਰੇ हमारा ये है कि पॉलिटिकल आदमी जो चला गया तो अपने आप ही नहीं आएगा फिर उसमें। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿजुअल तौर हम पे भी तो यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल है, कौन इसमें से जीतेगा कौन आएगा। 4 महीने की छुट्टी पे है, इस पे कोई भी ऑथेंटिक बयान देना
अभी नहीं, इनको 4 महीने हो जाने तो अप्रैल के बाद में बताएंगे फिर। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ राजनीति ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी जाती है। उसमें भी ऐसा भी है ना, उसमें भी बहुत लोग जो संयुक्त मोर्चे में उस टाइम पे भी थे, वे अलग अलग पॉलिटिकल उससे हल्का फल्का उनका टच था, उनका पॉलिटिकल उसमें टच रहा है, लेकिन वो उन मीटिंगों में, भारत सरकार की मीटिंगों में नहीं जाते थे। कोई ना कोई उन पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी उन पे, तो हो सकता है कि वे रिस्ट्रिक्शंस रहे आने वाले टाइम पे। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ पॉलिटिक्स दे नेड़े हो ना, हम नहीं किसी के नेड़े। देखो पॉलिटिक्स तो हर आदमी करता है। परिवार ने चुनाव नहीं लड़ियां? नहीं, हमें नहीं चुनाव लड़ना। नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना। नरेश टकैत नहीं, कोई नहीं लड़ेगा, हमारा कोई चुनाव नहीं। पहला पास्ट की जे आपां गल कर लईए, चुनाव नहीं लड़ियां पहला? नहीं, चुनाव लड़ी हैं पहले, लेकिन हमने टकैत भी पॉलिटिकल हुई? नहीं, पॉलिटिकल कैसे हो गए भाई? चुनाव लड़ा है, हमने तो छोड़ दिया ना, वो सब छोड़ छाड़ दिया। पॉलिटिकल का अर्थ क्या, मैं पूछा? पॉलिटिकल का अर्थ ये रहता है कि या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिला अध्यक्ष या ऊपर का कोई पद होगा तो पॉलिटिकल उसमें आता है, उसके अगर नीचे का भी होगा तो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल ही रहता है। कोई एमपी एमएलए बन जाता है तो वो पॉलिटिक्स में जरूर आता है, ये उसका रहता है। आने वाले टाइम च रकेश टकैत चुनाव नहीं लड़नगे? नहीं, हमें यूपी 2022 नहीं, हमें नहीं चुनाव लड़ना, ये हमने बिल्कुल साफ कर दिया, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ? हम उनकी ना तो सपोर्ट में जा रहे, ना उनके विरोध में जा रहे, हमें यहाँ पे जाना ही नहीं। किसी मोर्चा डैमेज होगा उन्होंने पॉलिटिक्स जानना? देखो नहीं होगा, पर मोर्चा कोई डैमेज नहीं होगा। ये एक जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जो खास करके सरकार में बैठे लोग हैं, वे कहते हैं कि इससे डाउन हो गया। जनता पूर्ण रूप से मोर्चे के साथ में है। कुछ लीडर अलग जा सकते हैं, लेकिन जनता मोर्चे के साथ में है। वो यहाँ की जनता पंजाब की लगा लो, आप हरियाणा लगा लो, आप पूरा देश की लगा लो, ये एक देश की प्रॉपर्टी है, देश की धरोहर है, और इसको संजोग कर रखने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। कुछ लोग लीडर जा सकते हैं, जनता नहीं गई। ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੋਰਚਾ डैमेज होगा। कोई डैमेज नहीं होगा, गलत फहमी में कोई ना रहे। मोर्चे में बहुत लोग हैं, मोर्चा ये देश की जनता की प्रॉपर्टी है। आदमी के जानने से कोई संस्था वो खत्म नहीं होती, आदमी जा सकता है। फिर चुनाव लड़न का उन्होंने जड़ा उनका वो व्यक्ति वो हम नहीं कहते नहीं ना, हम क्यों, देखो हम क्यों कहें किसी का सही गलत है? नहीं, कोई ओपिनियन हमारी कोई ओपिनियन नहीं, उनका व्यक्तिगत वो है उनका। नहीं, फिर भी नहीं, हम क्यों दें किसी पे व्यक्तिगत, किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहते? नहीं, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत क्यों हम करें? वो उनका व्यक्तिगत है। मोर्चा ना चुनाव लड़ा ना लड़ेगा, नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। व्यक्तिगत ये होता है कि व्यक्तिगत एक बंदा पॉलिटिक्स चला गया, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, उनका जथेबंदक रूप ਚ गईਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ जथाबंदी भी गई है तो उनका व्यक्तिगत वो है, मोर्चा नहीं गया। मोर्चा की है जिवें पंजाब च समझा जाता सी मोर्चा? नहीं, ऐसा नहीं, पंजाब मोर्चा पंजाब च समझा जाता ऐसा नहीं है। पूरा देश का किसान संगठन था ये, पूरे देश का किसान इसमें जुड़ा हुआ है, और ये उन्हीं का ही किसान संगठन है, अकेले पंजाब का नहीं है। पंजाब का सहयोग बड़ा है, पंजाब का सहयोग बड़ा है, एक पार्ट है पंजाब भी, और यहाँ के लोगों का सहयोग है। यहाँ के जितनी भी जत्थेबंदी थे उनका बड़ा सहयोग इसमें रहा है। लेकिन ये मोर्चा तो पूरे देश का है। ये था पंजाब स्टेट का आंदोलन था, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बना। पंजाब ने लीड करा मजबूती के साथ में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो 400 किलोमीटर का राउंड अप दिल्ली का था, उसकी बड़ी भागीदारी फिजिकल रूप से वहां पर रही। इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन पूरे देश का मोर्चा है और पूरे देश के लोग इस मोर्चे को चलाएंगे।
आप अपने वहां पर चलाएंगे, दूर दूर चलाएंगे। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ आरएसएस ਦਾ ਬੰਦਾ, फलाना आरएसएस ਦਾ ਬੰਦਾ। उनको देख रहे हैं तो उससे मोर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि ये जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उसके अलग पार्ट हैं, मोर्चा उनसे सेफ है, वो आपस में दे रहे होंगे, मोर्चे के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा उनमें से भी। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ आरएसएस ਦਾ ਬੰਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। वो नहीं है ना, मोर्चा लिखने से चिट्ठी लिखने से मोर्चे खत्म होते। चिट्ठी लिखी गई, नहीं ये नॉलेज में नहीं है हमारे लिखी गई। और मोर्चे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मोर्चा खत्म कौन कर देगा? कोई मोर्चे ऐसे थोड़ा खत्म होते हैं, मोर्चा तो बन गया, तो देश का मोर्चा है, ये बन गया, इसको कौन खत्म कर देगा? लेकिन ये है कि इसका गलत मिसयूज ना कोई करे। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वे भी इसका नाम नहीं कोई ले रहा, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी, वो अपना चुनाव लड़ो। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ? नहीं, हम उनके ना उसमें, ना हम उनके पक्ष में, ना उसके विरोध में जाएंगे। हम इंडिविजुअल वो है उनका व्यक्तिगत। नहीं, पर जिवें मैं पहला गल कीती है, कोई ना कोई ओपीनियन तो होंदा। ओपिनियन हम कोई इस पे ओपिनियन नहीं देते। हम क्यों ओपिनियन दें? भाई वोट हर आदमी को देने का अधिकार है, और अपनी वो बताता भी नहीं, तो उसको कहने लगे कि प्रेशराइज करने लगे कि भाई आप इसको वोट दो, इसको ना दो। जिसकी जो मर्जी आए। आजकल चुनाव लड़ना और वोट देना दोनों सबका अधिकार है। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ किसी से प्रेरित होता तो किसी पार्टी में जाता। इसका मतलब किसी से प्रेरित नहीं था। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ किसी ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। पार्टी से नहीं वो था, वो अगर किसी से प्रेरित होता तो उस पार्टी में शामिल हो जाता। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ वो ਹੁੰਦਾ, पार्टी ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ के ਆਪ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਆਪ ਤੋਂ उनके पार्टी के समझौते, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, अब किसी से समझौते करो। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मोर्चा बीजेपी ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, मोर्चा छोड़ के वे अब चले गए, वे चुनाव में चले गए, तो चुनाव लड़ो। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾर्ट ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? अभी इस पे कोई डिसाइड नहीं है कि कल क्या होगा, ये 15 तारीख में या उसके बाद में तय करेंगे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। हाँ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, विरोध होगा। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ? मैं कह रहा कि वो तो पॉलिटिकल अब चले गए, वो अपना पॉलिटिकल बयान दे रहे ਮਤਲਬ हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾर्ट नहीं है वो? अब वो नहीं है ना, हमारा अभी वो पार्ट है। जब तक वो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उसके बाद में पार्ट रहेंगे नहीं रहेंगे उसको बाद में पता चलेगा। अभी तो संयुक्त मोर्चा बयान दे रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे, और विरोध वो इसलिए कर रहे हैं कि अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी बर्खास्तगी नहीं हुई, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना, उस पर जो कमेटी बननी थी वो नहीं बना। ये 3-4 चीजों का विरोध अभी है, तो उसका भी विरोध करेंगे वहां पे पंजाब में। ਜੇ ਮੈਂ यूपी इलेक्शन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, यूपी इलेक्शन ਬਾਰੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? वहां पे इनको वोट तो कोई दे नहीं रहा सरकार वालों को, नाराजगी है, नाराजगी है। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਸਕੇਐਮ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਰਿਹਾ? ये सड़कों पर करेगी, शायद वहां जाकर भी कर सकती है, वहां जाकर भी कर सकते हैं। वहां पे फिजिकल रूप से वहां पर जाके जहाँ उनका प्रोग्राम होगा वहां पर कर सकती है। या उनका शायद 2 तारीख में उनका पुतले दहन का है, 2 तारीख में पुतले जला जाएंगे। तो ये है कि सरकार और प्रधानमंत्री उस तरफ नजरें करें कि कमेटी का क्या हुआ। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया कानून वापसी लिए हुए, लेकिन कमेटी नहीं बनी, तो उसका जवाब तो सरकार ही देगी। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिसीजन भी लेंदे रहे हो इकट्ठे। पार्टी बनाने तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई गल हुई सी? हमारी पार्टी उस पर कोई बात नहीं हुई। पंजाब के लोगों ने पार्टी बनाई है, नहीं कि संयुक्त मोर्चे ने। और पंजाब के पार्टियों ने पार्टी बना ली। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं, इस संबंध में हमारी कोई ज्यादा बातचीत नहीं है। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, हमारी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ हमारी ਪਾर्टी ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ? नहीं, हमारी बात नहीं हुई ज्यादा किसी से। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਾर्टी होती रहती है और सब होती रहती है। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ? एक तो 15 तारीख वाली बात होती है, एमएसपी पे बात होती है, इन सब चीजों पे बात होती है। संयुक्त समाज मोर्चे बारे गल नहीं होती? इसमें कोई बात नहीं होती है। तो पॉलिटिक्स में उसमें चले गए तो अपना चुनाव कोई गल तो होती होगी। नहीं नहीं, हमारी कोई नहीं होती। किसी के उसमें क्यों चर्चा करें जब हम उनको लाभ और हानि में है ही नहीं भाई। हम ना उनको उनके प्रचार में जा रहे ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ, बैठ जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ नहीं हमने क्या है कि छुट्टी पर गए 4 महीने की, और छुट्टी पर जाकर कौन आदमी क्या कर रहा, किसी को कहाँ घूमने जाना, कोई कह रहा है नहीं मैं तो पहाड़ देखने, कोई कह रहा ना मैं राजस्थान देखूंगा, मेरे रेगिस्तान देखना, कोई कह रहा जी मुझे पहाड़ देखने। छुट्टी पे है 4 महीने की। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ हाँ नहीं, ਹੋਮਵਰਕ ਐਸਕੇਐਮ ने नहीं ਦਿੱਤਾ। ये होमवर्क ही तो कर रहे, ਐਸਕੇਐਮ ने होमवर्क नहीं ਦਿੱਤਾ ना दे रखा है, होमवर्क ही कर रहे अपना करके। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ होमवर्क? फिर ना अपने आप ही ले रहे, कर लेंगे, आओगे कोई ना कोई करके, फिर आओगे कोई इंगे जाएंगे, कोई इंगे जाएंगे ना, जनता अपने आप बताओगी किसा कहाँ जाना। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ होमवर्क की सी फिर? एसकेएम तो लगा हुआ पूरे देश भर में लग रहा है। अभी छत्तीसगढ़ गए हम और उड़ीसा गए, सब जगह गए, तो उसमें एसकेएम तो पूर्ण रूप से लगा हुआ है, पूरे देश में मीटिंग कर रहा है, पूरे देश की हालात क्या है उस पर पूर्ण रूप से चर्चा कर रहे हैं। और पंजाब से अलग भी, क्योंकि जिन स्टेट में चुनाव हैं वहाँ पर लोग चुनाव में ज़्यादा व्यस्त लगे हुए हैं, लेकिन जिन स्टेट में चुनाव नहीं है वहाँ पे जनता की समस्या है उसकी आवाज़ उठाते हैं, बातचीत करते हैं और वहाँ की सरकारों को कहते हैं। एमएसपी एक बड़ा सवाल देश में है, और इस पे बड़ी चीज़ ये है कि इस पे बहस शुरू होगी अब प्रेस के माध्यम से होगी। अभी छत्तीसगढ़ गई तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस पे एक पूरी एक बहस करी, एक डिबेट करी, तो शुरू हो गया है एमएसपी पे अलग अलग स्टेट में। आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके नाल तुसीं कहा कि मोर्चा डैमेज नहीं होगा इन्हां दे ਐਸਕੇਐਮ ਚੋਂ ਜਾਣ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। भाई जब नॉन पॉलिटिकल रहते हैं तो साथ रहते हैं, जब पॉलिटिक्स में आ जा तो दोनों एक ही मेज पा जा, एक ही टेबल पाते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक हो जाता है सत्ता। उस टाइम पे उद्देश्य अलग रहता है। फिर की लगता बाइयां दा उद्देश्य कली अब वो तो भाई अब तो दोनों पॉलिटिक्स में है, तो दोनों उनका जवाब आपस में देंगे वे, हम नहीं तुसी की कहोगे फिर? तुसी क्या कि उद्देश्य सत्ता हो जाता है हुन? हाँ, हमने ये कहा है ना कि अब सत्ता की लड़ाई होगी, तो एक दूसरे के खिलाफ इसलिए दे रहा कि भाई मेरे वाले उसमें ये नान घुसे, तो अब सत्ता की लड़ाई होगी। अब वो बयानबाजी वो दोनों ही देखें। आज भी विपक्ष वाले तो कहते हैं कि हम तो संयुक्त मोर्चे के साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं, लेकिन जहां उनकी पॉलिटिक्स आएगी वो उनका आपस का फिर मैटर होता है। पॉलिटिक्स, सत्ता और सरकारें सब अलग अलग चीज होती है। सरकार अलग चीज हो जाती है, जब तक वो पार्टी रहती है तो वो काम करती है, जब फिर वो सत्ता में आ जाती है, उनकी सरकार बनेगी, तो फिर सरकार और पार्टियां अलग अलग चीज हो जाती है, वो दोनों एक नहीं रहती। मैं कुछ किसान लीडरां दे नाम लूंगा, संक्षेप च मैं उत्तर चाहूंगा भी किदां दे लगदे ने तुहानूं? गुरनाम सिंह चड़ूनी आंदोलन तो करते हैं, आंदोलनकारी तो है। अंदोलन तो बाहर पार्टी बनाई है पंजाब च, पार्टी बना ली तो उसका नुकसान होगा उनको, मोर्चे नूं होगा, मोर्चे को भी नुकसान होता है। जिवें
नहीं, नुकसान होता है ना कि जो लड़ने वाले लोग हैं वे पॉलिटिक्स की तरफ को जाएंगे तो उसका नुकसान होता है। बलवीर सिंह राजेवाल, मैं जितने भी लोग हैं ये एक लड़ने वाले और बहुत एक्टिव लोग थे है ये, जो ये जाएंगे तो इसका नुकसान तो होता है, भरपाई थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? नहीं, जब नॉन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स मजबूत दिखती है तो उसकी तरफ चल जाते हैं। व्यक्तिगत लाभ हो सकता है लेकिन किसानों का नुकसान होगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो तो उस तरफ गए नहीं, वो मोर्चे की तरफ है पूर्ण रूप से, और उस तरह के लोग हैं कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल, जो डैमेज हो रहा है उसको संभालने का काम करेंगे। जोगिंदर उग्राह, वो सब संभालने का काम करेंगे। तो यहाँ पे भी पंजाब में बहुत लोग हैं कि जो इस सिस्टम के साथ में नहीं गए। शुक्रिया टकैत साहब, धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟੂਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।